Good morning, class 9th students. After finish our second chapter of economics, now we are moved to our history and the unit number second. And the first chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Sorry. This is your unit name, Socialism in Europe and Russian Revolution. First chapter is the age of social change. This is your chapter first, okay, and this is unit 2. Okay. Have you may be seen like chapter second to this chapter, but we considered as these chapters as unit, and the headings of this chapter like number 1, the age of socialism, as a chapter 1. So don't be confused according to these headings. These are your units, and the chapters within the units are given number wise 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 chapters in this unit. Okay, 5 chapters are in this unit, and the unit name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Before this, you learn about the French Revolution, the freedom, the fraternity, the democracy, the constitution, monarchy, the suffrage, degradation of rights, women, and many other things that will be also in Indian history. You will be learn these topics and these contexts in class 10th. But before this, because the incidents happened before the Indian national movement, that's why we read French Revolution, Russian Revolution in the ninth class. Okay. Also in 10th class, you read about the French Revolution and many other nationalism making sentiments, national flag, national anthem. These are the topics in 10th class, and then after read about the international movement, because in history we moved through time. What is happened earlier is taught first, and what and after that we learn then after what happened before. So this is a chronology, what the time divided into 3 parts in a history: ancient history, medieval history, modern history. So this is your modern history. The time period is 1761 to till date. From 1761 the modern history is started. Okay, I want to say again to all of the students, submit your work till 7 p.m. Those who didn't submit their submit homework, आपको बेटा सबमिट करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। आप जो भी क्लास ले रहे हैं, जिस हिसाब से भी ले रहे हैं, टाइमिंग से या उसके बाद भी, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर लें, अपनी चीज़ों को सबमिट कर लें अच्छे से। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेटा है आपका मंथ वाइज, ठीक, आप सब लोगों का डेटा जो है मंथ वाइज बेटा वो जाता है प्रिंसिपल सर के पास, स्कूल में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास। तो उसमें सारी रिपोर्ट्स रहती हैं, किस बच्चे ने कितना वर्क किया, कितना नहीं किया। तो वो रिपोर्ट जो है जुलाई अगस्त की तो चली गई है, अब सितंबर की जाएगी। तो सितंबर का जो वर्क है, तो थोड़ा सा आप उसको अच्छे से बेटा सबमिट कर लें टाइम से। मुझे आप भेज सकते हैं अगले सिर्फ 2 ही दिन में, सिर्फ 2 डेज़ का ही मैं आपको थोड़ा सा मोहलत दे रहा हूँ। 2 डेज़, ओनली 2 डेज़। मुझे उसके बाद फिर सबकी प्रेजेंट नहीं लगानी होती है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। आपको बेटा 2 डेज़ में वो वर्क सबमिट करना होगा सितंबर का, ठीक है, ताकि मैं रिपोर्ट तैयार करूँ और सितंबर का रिपोर्ट मुझसे मांगी जाएगी तो मैं भेज दूँ। और ये मैं आपसे पूछ के भेज रहा हूँ, आपको बता के भेज रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं आपको पहले बोलूँ फिर आप रिपोर्ट भेजें उसके बाद मैं भेजूँ, नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, ताकि आप या गार्जियन कोई शिकायत ना कर सके। तो आप सितंबर की पूरी रिपोर्ट भेजिए मुझे डेट वाइज, जिसने कौन सा वर्क किस दिन किया है। डेट नहीं होगी तो मैं समझ जाऊँगा आपने उस दिन वर्क नहीं किया है। सिर्फ अगले 2 दिन में आज भेजेंगे।
आज का दिन है आपके पास और कल का दिन है। 3 अक्टूबर को अगर कोई रिपोर्ट भेजेगा, बहानेबाजी करेगा, बेटा मैं उसको नहीं मानूंगा। आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियरली समझ लें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं जिससे कोई लिमिट नहीं है। आप इतना झूठ बोल के पता नहीं कौन से डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो थोड़ा सा सिंसियर रहिए अपने स्टडी के लिए, अपने वर्क के लिए, और क्लास टीचर के प्रति भी आप थोड़े से सिंसियर रहिए। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, काइंडली वो चीज़ भेजें अच्छे से, और जो भेज रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तो मेरे पास सारी डिटेल है ही ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेजें। बेटा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ के बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप मैथ साइंस पढ़ेंगे उतना ही बड़ा रोल एसएसटी का है किसी भी एग्ज़ाम में। और ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे ही डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे तो उन्हें मैथ साइंस पढ़ना है, बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ने नहीं है। तो आप काइंडली, फीस आप पूरी भरते हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट के प्लस प्रति उतने ही सिंसियर बनिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, द एज ऑफ सोशल चेंज। Okay, in the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom. Yes, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने फ्रीडम के बारे में जाना, इक्वलिटी के बारे में जाना, जो सर्कुलेटेड हुई पूरे यूरोप में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री की ऐसी घटना है, इंसिडेंट है, जिसकी वजह से फ्रीडम और इक्वलिटी की बात होना शुरू हुई। जो 3 एस्टेट्स थे उसी में से जो भेदभाव था उसमें इक्वलिटी की बात हुई, और वो बंधे हुए थे, हर एक चीज़ से बाउंडेशन था, इसलिए वो फ्रीडम की बात करते थे। और उन्होंने रेवोल्यूशन की एक पूरी एक सीरीज़ के ज़रिए वहाँ पे आज़ादी और बराबरी का हक पाया है फ्रांस में। तो ये चीज़ पूरे बेटा यूरोप में फैल रही है फिर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन यूरोप और इन अदर वर्ल्ड इज सेट टू बी अंडर एज monarch or aristocracy. They don't have freedom, they don't have equality, and even they don't have rights, basic rights, जिनकी बात आप डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट्स के बारे में बात कर चुके हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही वो सारे पॉसिबिलिटीज़ को चेंज किया, क्रिएट किया, विद सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर, जिसमें कि सोसाइटी बनती है, किससे बनती है? बराबरी से बनती है, आज़ाद से बनती है, और फ्रेटर्निटी, भाईचारे से। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which control economic social power. ये चीज़ आपको पता है, सोसाइटी ब्रॉडली डिवाइडेड थी एस्टेट्स में, और उनको चलाने वाले जो लोग थे वो एरिस्टोक्रेट थे, आपको पता ही है, जो कि एक नोबल क्लासेस से जुड़े हुए लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं का पावर होती है। और एक चर्च था जिसने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा था, इकोनॉमिकली भी। आपने टाइल ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में। और सोशल पावर, किस तरह से वो हर चीज़ में सिर्फ उन्हीं की बातें सही होती थी, और चर्च के आगे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन के बाद इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस। आप जानते हैं रेवोल्यूशन के बाद ये सब चीज़ चेंज हुई इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। चाहे वो यूरोप की बात हो, एशिया की बात हो, इसमें इंडिया की ही भी बात होगी जब हम आज़ाद हुए थे। न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू डिस्कस्ड। बात किस किस चीज़ की हुई? इंडिविजुअल राइट्स, क्योंकि लोगों के अपने खुद के कोई अधिकार नहीं होते थे। और किस चीज़ की बात हुई? सोशल पावर की, कि उसे कंट्रोल कौन करे। जैसे इंडिया में कहा जाने लगा कि जो पावर है उसे कंट्रोल कौन करे, इंडियंस या ब्रिटिश। और हमारे अधिकार कहाँ हैं? वेयर आर आवर राइट्स इन द ब्रिटिश एरा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाज वेयर आवर राइट्स। तो वही चीज़ थी। तो अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाने लगा। आप तभी देखते हैं हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरी पीपल्स, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, के गांधी, मैनी ऑफ अदर्स, अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, मैनी अदर्स। ये वही तो लोग हैं जिन्होंने डिस्कस करना शुरू किया, और डिस्कस करते करते उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया इंडिया में भी। ठीक है। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेजिरियो टॉक द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में चेंजेस हो रहे थे और जो घटनाएं हो रही थी, तो इंडिया में उनको सबसे पहले बोलने वाले लोगों में से राजा राम मोहन रॉय थे।
और अभी हेनरी डेरोजियो का नाम आएगा, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए, रिलीजियसली डिबेट्स को बहुत ओपनली ले आए, सोशल में मतलब सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर था उसको इक्वल लाने का कोशिश की, ये वो लोग हैं। और राजा राम मोहन रॉय को तो अपने यहाँ वैसे भी हम फादर ऑफ न्यू मॉडर्न इंडिया कहते हैं, और वो बहुत पढ़े लिखे ऊंचे रईस घराने से थे। ओके। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में, रेवोल्यूशनरी यूरोप मतलब यूरोप में उसके बाद क्या क्या हुआ, उन चीज़ों के बारे में भी डिबेट्स और आइडियाज़ के बारे में डिस्कस होने लगे थे। ठीक है। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ वही जगह होती हैं जहाँ पे कोई कंट्री किसी अदर लैंड के हिस्से को कब्जे करके अपने तरीके से अपना रूल करता है, उसको कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे इंडिया ब्रिटिश के लिए एक टाइम पे कॉलोनी ही था। इन टर्न रिशेप्ड, और बदले में रिशेप्ड दिस आइडियाज ऑफ सोशल चेंजेस। जब डेवलपमेंट हो रहे थे इतने सारे डेवलपमेंट कॉलोनीज में, उन इलाकों में, देशों में, कंट्री में, तो बदले में क्या हो रहा था, दोबारा से जो सोसाइटिकल चेंज के आइडियाज हैं उनको रीशेप किया जा रहा था, दोबारा से बनाया जा रहा था। नॉट एवरी वन इन यूरोप, हर कोई नहीं, हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हर कोई नहीं चाहता था। अब कौन नहीं चाहेंगे, सिंपल सी बात है कि वही लोग नहीं चाहेंगे जिन्हें कहीं ना कहीं इसी ऑर्डर को बनाए रखना है, इसी पावर को बनाए रखना है, तो वो लोग तो इस तरह के चेंज चाहेंगे नहीं। तो ये बात भी थी। अब यहाँ पे कुछ बहुत सी कॉमन से वर्ड आएंगे जिनको आपको समझना और उनको एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for gradual shift. हाँ, जो इस तरह के चेंजेस के रिस्पॉन्स आ रहे थे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे या एक्सेप्ट कर रहे थे, वो तरह तरह के थे बेटा। वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट कर रहे थे वो, उनसे लेके दैट सम चेंज वर नेसेसरी, जो सोचते थे हाँ कुछ चेंज तो अच्छे हैं, बट विस्ट फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन वो किस तरह चाहते थे, धीरे धीरे चेंज हो। समझिएगा आप इस चीज़ को। टू दिस हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और उन लोगों के लिए वो कैसे चाहते थे सोसाइटी रिस्ट्रक्चर कैसी हो, रेडिकली। रेडिकली समझते हैं आप भाई? रेडिकल होता है ना एक बहुत तेज़ी से होना, एक रेडिकल होता है होना बट अपनी शर्तों पे होना। सम वे आर कंजर्वेटिव, अदर्स आर लिबरल्स और रेडिकल्स। तो तीन वर्ड आएंगे आपके पास अब, एक हुआ कंजर्वेटिव, एक आएगा रेडिकल्स और एक आएगा लिबरल्स। अब इन तीनों वर्ड्स को आपको समझना है कि ये मानने वाले लोग कौन कौन से होते हैं, किन को आप कह सकते हैं कि रेडिकल है, किसको आप कह सकते हैं ये लिबरल है, और किसको कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव है। देखिए, व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। अगर हम उस समय की बात करें तो इन सब वर्ड्स की अगर बात करेंगे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव, तो उनके मीनिंग क्या थे। What separated these strands of politics and what linked them together? ये चीज़ किस तरह से पॉलिटिक्स से अलग थी, लेकिन ये फिर भी किस तरह से पॉलिटिक्स में इनको जोड़ के देखा जाता था, इन टर्म्स को, इन लोगों को, इन आइडियाज़ को। We must remember that these terms do not mean the same thing in all context of all time. अच्छा, इन तीनों टर्म्स की अगर बात करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स टाइम टू टाइम अलग अलग यूज़ होते हैं। एक साथ एक ही टाइम के लिए हमेशा के लिए कोई टर्म यूज़ नहीं होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, टर्म्स अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस जो थे उस टाइम, परंपराएं चल रही थी 19th सेंचुरी की, उनके बारे में बात करेंगे। एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस चेंज, उन्होंने कैसे बदलाव किया ये भी देखेंगे। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाएंगे, विच देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ ए रेडिकल ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे थे, रेडिकल, लेकिन अपनी शर्तों पे। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया। अभी कौन सी घटना आप पढ़ने वाले हैं, रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे बेटा हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था ये यूरोप में। Socialism became one of the most significant and powerful idea to shape the society in the 20th century. रशिया में जब रेवोल्यूशन हो रहा था बेटा, तो सोशलिज्म एक नई विचारधारा पैदा हुई। अब सोशलिज्म क्या है ये भी एक अलग वर्ड हो गया। 4 वर्ड्स हो गए आपके लिए न्यू, रेडिकल, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव एंड सोशलिज्म। इन सब चीज़ों को आप समझेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव की। ठीक है,
तो आइए ज़रा देखते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन राइज होता है कि लिबरल्स कौन है, रेडिकल्स कौन है, कंजर्वेटिव कौन है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज, एक ऐसा समूह, ऐसे लोगों का ग्रुप जो चेंज सोसाइटी में चाहता है, वो लिबरल्स होते हैं। वो लिबरल्स होते हैं, चेंज चाहता है। लिबरल्स को और क्या चाहते हैं? लिबरल्स वांटेड अ नेशन विथ टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सभी को एक साथ धर्मों के साथ मिल बांट के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की चीज़ों को सहिष्णु बनना चाहिए एक दूसरों के प्रति, हमें देखना चाहिए कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों में उनको साथ दें, देखें, और सामने वाला भी हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट करे, यानी एक दूसरे की चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। वो लिबरल लोग होते हैं। जैसे मैं या आप हैं, आप किसी भी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, आप सब धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप लिबरल लोग हैं, क्योंकि आप सबको मिल बांट के रहने की इजाज़त देते हैं। वो लोग लिबरल हैं, ठीक। वो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सभी धर्म बराबर रहें, एक साथ रहें। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन states usually discriminated in favor of one religion or another। और हमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सभी धर्म एक साथ रहें। ये बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि यूरोप में एक टाइम पे एक धर्म को फेवर ज़्यादा किया जाता था। कैसे? ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, समझिएगा आप। ऑस्ट्रिया स्पेन करते थे कैथोलिक चर्च को। अलग अलग है ना। जो ब्रिटेन वाला इंग्लैंड वाला है बेटा, वो प्रोटेस्टेंट है। एक्चुअली क्या है, जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो कहते हैं बेटा कैथोलिक, दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जिन्होंने कैथोलिक्स में बुराइयां देखी, कैथोलिक्स को रिफॉर्म करने के सोचा, और उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया क्रिश्चियनिटी में ही, और वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो लोग प्रोटेस्टेंट लोग हैं। पूरी दुनिया जो है इस तरह से डिवाइडेड है, जिसे रोमन कैथोलिक भी कह देते हैं। कैथोलिक कैथोलिक मतलब जो पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। वेटिकन सिटी जो पोप बैठते हैं, वहाँ से जो आदेश और नियम कानून कायदे आते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो। और प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जिनकी शुरुआत इंग्लैंड में बहुत टाइम पहले हो चुकी थी, और वो वहाँ से उन चीज़ों को मानते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। तो एक तरफ चर्च ऑफ इंग्लैंड हो गया था और दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च था जो रोमन वेटिकन सिटी से चलता था। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स और क्या क्या चाहते थे, जरा आप समझते जाएं। लिबरल चाहते थे कि जो अनकंट्रोल्ड पावर है डायनेस्टिक रूलर्स की, डायनेस्टिक मतलब एक ही फैमिली के रूलर चले आ रहे हैं, उनका हमेशा विरोध करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और लिबरल्स और क्या चीज़ चाहते थे बेटा? पॉइंट्स की बात अगर हम करें, वो ऊपर फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट कौन सा है? दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस तरह से वर्क ना करे कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है, पढ़ाई लिखाई, जीने का, नौकरी करने का, घूमने फिरने का, धर्म को लेके, इस तरह के अधिकार कभी छीने जाएं। तो लिबरल वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों का बचाव करते हैं। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक नागरिक के राइट से क्या करते हैं? सेफ गार्ड, बचाव करते हैं। ये लिबरल्स की खासियत है। अगर ऐसे आप में से कोई लोग हैं तो आपको लिबरल कहा जाएगा। आगे देखिए, दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और क्या पॉइंट है लिबरल्स का? वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रिटेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी। यानी कि वो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक पार्लियामेंट सिस्टम की बात करते हैं जहाँ डेमोक्रेसी बेस्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों। लॉ की बात करते हैं कि लॉ की समझ रखने वालों को एक वेल ट्रेंड जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो जहाँ हमें न्याय मिल सके। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, जो सरकार हो या बड़े बड़े लोग हो उनसे इंडिपेंडेंट हो। अगर उनके कंट्रोल में होगी तो वो जैसा चाहेंगे वैसे फैसले करवा लेंगे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। कई बार कहते हैं कि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये उस टाइम की बात है, आप समझिए पहले, ये उस टाइम की बात है। लेकिन आज लिबरल्स डेमोक्रेट्स को पसंद करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी। उस टाइम जो लिबरल्स थे वो यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी, वोट देने के अधिकार को सही नहीं मानते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी बेटा उस टाइम इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही थी, इसलिए।
दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। वो ये मतलब नहीं मानते थे कि हर किसी को वोट देना चाहिए। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो ये समझते थे जिस मैन के पास प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वही वोट दे सकता है। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। वो ये भी नहीं पसंद करते थे कि वो वुमेन जो है वो वोट देने का अधिकार रखें। तो ये तो थी बेटा इस तरह की छोटी छोटी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल। अब यहाँ से बेटा रेडिकल की बात आएगी। ऊपर आपने लिबरल पढ़ लिया, अब रेडिकल्स कौन है जरा आप देखें तो। वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। आप समझ गए, अतिवादी लोग रेडिकल्स, वो बहुत जो उग्र होते हैं। उनका क्या मानना, उनका मानना है कि गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए, जो मेजॉरिटी कंट्री की पॉपुलेशन हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदूवादी गवर्नमेंट हो, हिंदूवादी चीज़ों को बढ़ावा दे। लिबरल्स कहते हैं कि एक साथ सब रहो, ठीक। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेजेट मूवमेंट्स, और इनमें रेडिकल्स में वो भी लोग थे जो वुमेन्स के सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं। अब सफरेज एक नया वर्ड आया, वो भी अब आपको बताएंगे सफरेज का मतलब क्या होता है। वैसे तो सिंपल वर्ड है टू राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार होता है उसे सफरेज कहते हैं। ऐसे मूवमेंट्स को लोग सपोर्ट करते थे, कौन, रेडिकल्स। अनलाइक लिबरल्स, लिबरल्स की तरह बात करें, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। जैसे लिबरल्स थे वैसे ही वो अपोज करते थे उन सारी सुख सुविधाओं का, लैंड ओनर्स, भू जमींदार जो होते थे ज़मीन के वो, और जो बड़े बड़े मुहिम के मालिक होते थे उन चीज़ों का वो विरोध करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट डिसलाइक्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू। हाँ, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर चिढ़ते थे या वो विरोध करते थे कि सारी वेल्थ और जो इकोनॉमिक पावर है कुछ लोग के हाथ में नहीं होनी चाहिए। वही कहते थे ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास हो सकती है, लेकिन कुछ ही लोग के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि वो लोग ये तो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो होनी चाहिए, बट इस चीज़ से चिढ़ते थे कि कुछ लोग के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सबके हाथ में ज़मीन का हिस्सा होना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। ओके, फिर आगे देखते हैं, लास्ट आपका है कंजर्वेटिव। ज़रा देखें तो आप, कंजर्वेटिव कौन थे बेटा। कंजर्वेटिव अपोज करते थे रेडिकल और लिबरल दोनों को। वो तो थे कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं सिर्फ उसी में भरोसा करना, वो लोग कंजर्वेटिव होते हैं। संकीर्ण मानसिकता वाले, वो नई चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, ना तो चेंजेस चाहते हैं, ना एक धर्म के लोगों को एक साथ रहना चाहते हैं। रेडिकल्स की तरह वो ये भी नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का ये लोग विरोध करें, प्रॉपर्टी किसी के भी हाथ में ज़्यादा हो सकती है, कुछ लोग के हाथ में हो, ऐसा कंजर्वेटिव, यानी कि टोटली राजशाही वाली चीज़, मोनार्क वाली चीज़ों में बिलीव करते थे कंजर्वेटिव। After the French Revolution, however, even conservatives had opened their mind to need for change. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव ने सोचा यार हमें भी अपनी थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज करना चाहिए, अपने आइडियाज़ को चेंज करना चाहिए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। 18th सेंचुरी तक की जब बात करेंगे तो वो चेंजेस के बारे में हमेशा विरोध करते थे, नहीं ये चीज़ नहीं बदलनी चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। लड़कियां पर्दे में रहनी चाहिए, वो ये होती हैं, नौकरी नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसी सोच रखने वाले लोग कंजर्वेटिव होते हैं। फ्रांस में भी ऐसे लोग थे उस टाइम तक। बाय द 19th सेंचुरी की बात करें तो एक्सेप्टेड देयर सम चेंजेस वर इनएविटेबल, कि कुछ चेंज को हम जो है स्वागत योग्य हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, लेकिन उनका ये मानना है कि जो पीछे चीज़ें रही हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। पास्ट, भूतकाल में जो चीज़ें रही हैं उनका सम्मान करो, वो चीज़ बनी रहनी चाहिए। एंड चेंज हैज़ टू बी ब्रॉड अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और हाँ ठीक है, चेंजेस आप कर सकते हैं, बट एक हाँ ऐसे कर लो, ठीक है ये चीज़ इतने सालों में हो जाएगी, ठीक है इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, ठीक है इतना नहीं इतना चेंज कर लो। यानी कि वो चेंजेस तो चाहते हैं बट बहुत छोटे छोटे। ये वही बात है जैसे किसी लड़की से कहा जाए तुम जीन्स पहन सकती हो लेकिन उसके ऊपर तुम कुर्ता पहन लो। तुम मार्केट जा सकती हो बट दुपट्टा डाल लो, ठीक। तुम मार्केट में जा सकती हो, बुर्का पहन लो।
समझ में आया ना? चेंजेस चाहते हैं कि लड़कियां मार्केट जाने लगे, स्कूल जाने लगे, बट ऐसे ढक के जाओ, ये पहन के जाओ, मतलब बंदिश तब भी उन पे बहुत रखनी है। आप इससे बात मत करें, इससे बात मत करें, ये नहीं खा सकते, ये पी नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप मोबाइल नहीं चला सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये ऐसे ही गवर्नमेंट हमसे कहती है। तो कंजर्वेटिव बेसिकली क्या है, चीज़ों में चेंजेस तो चाहते हैं बट बहुत कम चाहते हैं और बहुत धीरे। पुरानी चीज़ों में यकीन ज़्यादा करते हैं, पास्ट है टू बी रिस्पेक्टेड। सच डिफरिंग आइडिया अबाउट सोशल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। अब इतने सारे आइडियाज़ हैं 3 तरह के, तो क्लैश भी करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। और पॉलिटिकल और सोशल जब चीज़ों में आएंगे, तो जो चीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई है उसमें चीज़ें ज़्यादा आपको दिखाई दे रही थी। द वेरियस अटैम्प्ट एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी। और ऐसी चीज़ें बहुत हुई रेडिकल्स के बीच, कंजर्वेटिव्स के बीच, लिबरल्स के बीच, कि वो चेंज चाहते हैं रेवोल्यूशन के बाद, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं देश में। ऐसे बहुत सारे मौके आते रहे। हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। हुआ क्या कि जब तीनों ही आपस में इस तरह बढ़ते रहे, तो उन चीज़ों को डिफाइन किया गया, उनकी लिमिट्स क्या होंगी, उनका पोटेंशियल क्या है। पॉलिटिकल टेंडेंसीज कौन कौन सी? लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स। उन सब की लिमिट्स और पोटेंशियल को लोग धीरे धीरे भांपते रहे, लोग समझते रहे, उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती रही और आप देखेंगे एक बेहतरीन चीज़ सामने आई। ठीक, आई थिंक सफरेज इसमें यहाँ तो नहीं दिया है। सफरेज सफरेज सफरेज, यस ये दिया है। न्यू वर्ड्स की जब बात आएगी, न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो आप हमेशा बेटा नोटबुक में ही लिखें, आप ध्यान रखें। ठीक, सफरेजेट मूवमेंट क्या होते हैं? ए मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। राइट टू वोट के लिए जो मूवमेंट होता है उसको चलाना, लेकिन किसके लिए? वुमेन के लिए। उन सभी लोगों को सफ्रेगेट मूवमेंट कहा बेटा। वोट की अधिकार की लड़ाई के लिए बहुत से मूवमेंट चलाए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं सोचता हूँ मैं आज आपके लिए इतना ही रखूँ। कल हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के बारे में। तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए, और जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं उस पर फोकस रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है वो मैं आपको ग्रुप में आज भेज दूंगा मैप से रिलेटेड, क्योंकि मैप क्लास इस मंथ में लेनी बहुत ज़रूरी है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो होमवर्क जाएगा वो आपके, वैसे आज का होमवर्क क्या है वो तो मैंने आपको बताया नहीं। ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये आपको लिखना है नोटबुक में, ठीक। और जो दूसरा है आपका वो है लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव। यानी क्वेश्चन नंबर 1 होगा हु आर लिबरल्स, सेकंड होगा हु आर रेडिकल्स, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव्स। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 3 क्वेश्चन हो गए। और ये जो पैराग्राफ मैंने आपको समझाए हैं इसी में आपके वो आंसर्स हैं, और न्यू वर्ड है सफरेट मूवमेंट। ये इतना सा वर्क आपको भेजना है 7 PM तक। ध्यान रखें जो सितंबर के वर्क वाली बात मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताई थी, हु आर लिबरल्स, हु आर रेडिकल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव्स। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स समझाए थे मैंने आपको, उसी में से पॉइंट्स में से आपको करके लिखना है। आप पूरा पैराग्राफ मत छापा करो बेटा, जो पॉइंट्स होते हैं, जो मैं चीज़ बता रहा होता हूँ, आप उन चीज़ों को लिख के राइट डाउन किया करो। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।